हमारा है, हमारा है, हमारा है। देखो नरेंद्र मोदी जी भी हमने देखा बिस्किट खिला रहे हैं, कपिल देव जी बिस्किट खिला रहे हैं, सचिन तेंदुलकर बिस्किट खिला रहे हैं, प्रोफेसर सुभाष सत्रा। हम भी बच्चों शुरू से ही बच्चों की सेवा करते हैं। हमारे जो डॉग्स हैं, सरकार को ये जो जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, और गुड़गांव में 50,000 बताते हैं, 50,000 जहाँ पे स्टे डॉग्स हैं, अब उनको यहाँ पे कोई है ही नहीं, शेल्टर है ही नहीं। कुछ एनजीओ का सहारा है जिनकी वजह से आज जो ये गली के डॉग्स है या और जो जानवर है जिनका रह बसर किया जा रहा है। बिस्किट खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं। नेपाल में उसका पालन तो नहीं कर रहे ना। अभी मोदी जी को बोलना चाहिए इस बात के लिए कि डॉग्स को नहीं उठाना चाहिए, स्ट्रीट से बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। नहीं, कैमरे के सामने आकर के मोदी जी अगर मैं बिस्किट खिला देती हूँ, मैं ये मतलब नहीं कि मैं उनका एनिमल को प्यार करती हूँ। मैं We think that dogs are something different than us. We think we are superior. We think we are a dominating species for some reason. That is an outdated notion, and that is so untrue on so many levels. As someone who has been surrounded by dogs for 21 years now, I can say they have complex emotions. They are highly intelligent. So everyone is saying किसी भी developed country में आपको stray dogs दिखते हैं. Are you addressing the fact how many years it took, what policies changed, animal cruelty laws, adoption laws, civic sense, urban planning? No one is addressing those things. You want के ingredient कोई ना मिले, बिरयानी हमारी रातों रात तैयार हो जाए नीदरलैंड जैसे. That's not possible. Caregivers, we've been feeding dogs for more than 14 years till in Delhi, अभी गुड़गांव में vaccination, sterilization, feeding. That is the only way to stabilize their population and make sure there are no infections. It's a coexistence happily. Everybody is living. There's no stress to anyone. प्रोफेसर सुभाष सत्रा। हम भी बच्चों शुरू से ही बच्चों की सेवा करते हैं। हमारे जो डॉग्स हैं, सरकार को ये जो जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, और गुड़गांव में 50,000 बताते हैं, 50,000 जहाँ पे स्टे डॉग्स हैं, अब उनको यहाँ पे कोई है ही नहीं, शेल्टर है ही नहीं। अब जल्दी जल्दी ऐसा डिसीजन लेना, गवर्नमेंट पहले से देखो गवर्नमेंट क्या इसमें कमी रही है, तो पैसा वो देते हैं, एनजीओ वो चाहे जो भी वहाँ पे हैं यहाँ पे वो काम नहीं कर पाए। अब इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है कि वैक्सीनेशन हो, स्टरलाइजेशन हो, और साथ ही साथ मतलब जो ABC जो सिस्टम है, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल जो सिस्टम है, उसका दृढ़ता से पालन होना चाहिए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेस साहब से हम उनसे प्रार्थना करते हैं इसको स्टे करके, ये जो डिसीजन है इसको स्टे किया जाए, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दे, जिससे जो डॉग लवर्स हैं उनको भी परेशानी ना हो, और जो बच्चे हैं उन किसी जनता को भी परेशानी ना हो। कोई बेस्ट इसका जो है ना ऑप्शन, जो बेस्ट समाधान है वो उसका निकाल ले। इस तरह से आप दिल्ली में आप देखो 10 लाख बताते हैं, आज सुबह डाटा था 10। I don't know much about politics. I don't know much about the government. All I know is we think that dogs are something different than us. We think we are superior. We think we are a dominating species for some reason. That is an outdated notion, and that is so untrue on so many levels. As someone who has been surrounded by dogs for 21 years now, I can say they have complex emotions. They are highly intelligent and they communicate. First of all, we don't want to listen half of the times, and the very few of us who do listen are trying our best to make sure that the others listen as well. They communicate, we don't want to listen. When we say they're biting us, it's because we're aggravating them. It's because we do not understand them. We need coexistence. We do not need competition. We need to cooperate. We need to learn how we can cohabitate together. Because if we keep thinking that we are the superior species, we're going to find out that the truth is a lot different than that. So yeah. very well. So I don't want to talk about the failure of the government bodies, ABC rules. Everyone knows about it. There are only two things that I want to address. One is everyone is saying किसी भी developed country में आपको stray dogs दिखते हैं. Are you addressing the fact how many years it took, what policies changed, animal cruelty laws, adoption laws, civic sense, urban planning? No one is addressing those things. You want के ingredient कोई ना मिले, बिरयानी हमारी रातों रात तैयार हो जाए नीदरलैंड जैसे. That's not possible. और सेकंड थिंग, जो ये लोग बोल रहे हैं कि क्यों रो रहे हैं, ये शेल्टर में खुशी तो है, इन्हें खाना मिल रहा है, सड़क पे मर रहे हैं. सी आई हैव 3 इंडीज एट माई होम. मैं बाहर बहुत सारे इंडीज़ को, स्ट्रेज को फूड दे रही हूँ. इंडीज, द स्ट्रेज हु आर ऑन द रोड आर हैप्पियर देन द वंस एट माई होम, एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट. मैं इतना प्यार, 3 डॉग्स हैं, अपना पूरा फैमिली इधर प्यार करें. पहली बात तो कैन दी गवर्नमेंट प्रोवाइड दैट लेवल ऑफ लव एंड शेल्टर्स? इवन इफ इम्पॉसिबल, इवन इफ दे डू, स्टिल कैन anyone stay in a 5-star hotel in one room for rest of the life? बारिश कैसी है, धूप कैसी है, कुछ देखे बिना, can that without any company, can that person be happy? No. Then how can
a person, one single person, because he's a judge, can think he's a god, he will not listen to anyone, and he can make a decision on behalf of the whole species. He's not God, right? He's still a democratic country. Forms of life, all forms of life are indispensable to nature, and every form of life has an aggressive side. अब bees हैं, bees काटते हैं. If you eliminate bees, all greenery will be lost on the earth in the next 10 years. If the bees bite, you can't kill them indiscriminately. You can't do all this. अभी देखो हमारे अभी साथी भी कह रहे हैं, और ये कुछ आम जनता जो है ना, ये नीदरलैंड का एग्जांपल देती है। नीदरलैंड की पॉपुलेशन 75 लाख है, वहाँ पे आप पेंटिंग भी नहीं कर सकते अपनी चॉइस से। दैट कंट्री इज डिफरेंट। हमारा इंडिया इतना बड़ा देश है, सब कल्चर के लोग हैं यहाँ पे। अब देखो नरेंद्र मोदी जी भी हमने देखा बिस्किट खिला रहे हैं, कपिल देव जी बिस्किट खिला रहे हैं, सचिन तेंदुलकर बिस्किट खिला रहे हैं, जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज के हैं, साधु महात्मा हैं, सभी इनको पूछते हैं। सॉरी मैं आपकी इनको बात को पूछते हैं काटूंगी। वो प्लीज। बिस्किट खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, हाँ। नेपाल में उसका पालन तो नहीं कर रहे ना। अभी मोदी जी को बोलना चाहिए इस बात के लिए कि डॉग्स को नहीं उठाना चाहिए स्पीड से, बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। नहीं, कैमरे के सामने आकर के मोदी जी अगर मैं बिस्किट खिला देती हूँ, मैं ये मतलब नहीं कि मैं उनका एनिमल को प्यार करती हूँ। मैं तो एंटी में एनिमल हूँ। अगर मैंने कोई आवाज ही नहीं उठाई, मैं दिल्ली से आई हूँ, अभी मैं भी कुत्तों को खाना खिलाती हूँ, बिल्लियों को खाना खिलाती हूँ। Caregivers, we've been feeding dogs for more than 14 years. पहले in Delhi, अभी गुड़गांव में vaccination, sterilization, feeding. That is the only way to stabilize their population and make sure there are no infections. It's a coexistence happily. Everybody is living. There is no stress to anyone. I think that is the only way to go. But what people have resorted to is कि वो खुद ही sterilized, vaccinated dogs को भी उठा रहे हैं और वे इधर-उधर dump करते हैं, relocate करते हैं. They go into different territories, and that's when causes so much of stress and distress to them, and they die. So we don't want all of this action to be taken. We want government and SC to pass an order which is in favor of the humanity. So that is vaccinate, sterilize, feeding. They need to support the caregivers and feeders. रैंडम से स्टार्ट करते हैं, सारे लोग तरीके से खड़े रहे ताकि कंट्रोवर्सी ना बने इस चीज के लिए। हमारा नहीं, हमारा है, हमारा नहीं, हमारा है, हमारा नहीं, हमारा नहीं, हमारा है। Let's start बिल्कुल ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवारा जो पशु है उनके लिए शेल्टर होम होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं समझता हूं कि या तो इंसानों के लिए शेल्टर होम नहीं बनाए जा रहे, तो जानवरों के लिए सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे हम। आज कुछ एनजीओ का सहारा है जिनकी वजह से आज जो ये गली के डॉग्स है या और जो जानवर है जिनका रह बसर किया जा रहा है कुछ एनजीओ के कारण, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण आज जो हालात है गलियों में आप देखिए, आवारा कुत्ते बच्चों को काटते हैं, नोचते हैं, हमला करते हैं और इस तरीके की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए और इस ओर तो खासकर इनके लिए शेल्टर होम का निर्माण सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है और उससे पहले भी काफी एनजीओज ने भी इसके लिए आवाज उठाई थी कि भाई इनके शेल्टर होम होने नहीं चाहिए, लेकिन सरकार की कोई सुनवाई नहीं। मैं फिर दोहराता हूं कि ये इंसानों को शेल्टर होम नहीं दे सकते, तो जानवरों के लिए इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है।